Okay, today we are going to discuss about electric dipole and its dipole moment, electric field, and torque and potential energy of dipole. These are the topics related to dipole. We have the total 5 topics related to electric dipole. So let us learn what is the electric dipole. Dipole means system of two charges. So electric dipole is the system of two equal and opposite charges separated by some distance. Okay, masses may be different, but charges should be equal and opposite. Okay, water molecule is the polar molecule because its positive and negative center of positive and negative is separated by some distance. Okay, now this property of what is called water molecule is used in microwave oven. है ना? When it is the food content is kept inside the microwave oven and which is having the frequency of very high frequency of microwave, and it is continuously changing, therefore water molecules are also changing its direction in order to align themselves into the electric field because of the continuous change in the direction of flipping of the molecules very fast, and due to friction they get heated up and hence content is cooked, food stuff is cooked inside or heated. That is how microwave oven which works on the that polar quality of that water molecule having the dipole moment. So what see now, what is the dipole moment? Dipole moment, electric dipole moment is denoted by P, small letter P, and it is let's see how it is defined. So this is the dipole having the charge minus q and plus q. Okay. And 2a is what? 2a is the dipole length, which is the distance between minus q and plus q. This is the NCERT book convention. 2a, we don't take it a. Conventionally it is taken 2a, but numerical point of view, this distances are sometimes given L, sometimes given R, but theory point of view, derivations point of view, in NCERT book we are going to take it 2a, not a. 2a is the dipole length, distance between the minus q charge and plus q charge, and q is the magnitude of charge, right? Or we sometimes call it q is the charge on the dipole. Okay. Therefore, dipole moment is defined as the product of magnitude of charge, here it is, and dipole length, here it is. So, dipole moment is product of magnitude of charge, one charge, and distance between the two charges, that is called dipole length. And its vector quantity, its direction is given by the arrow drawn from negative to positive charge. Okay, like this, in this direction. If minus q is here, plus q is here, then dipole moment will be like this. If minus q is this side, plus q is this side, then direction will be like this. Okay? So, but generally in diagrams we are taking minus q left side, or we can take NCERT book, they have taken minus q on right hand side. Doesn't matter. Okay? So wherever minus q is there, draw the charge from minus q to plus q. That will be the direction of dipole moment, and SI unit is coulomb meter because C is for charge and dipole length meter, cm. C will be capital. Now note, net charge on the dipole is 0 because one is plus, other is minus, therefore net charge is 0, but charge on the dipole is always q. Okay. When we ask how much is the charge on the dipole, we call it magnitude of that charge, one charge, q. Right. So let's solve very simple question. Find the dipole moment of dipole having the charges plus q plus 1 microcoulomb minus 1 microcoulomb separated by distance 2m. Okay, just try yourself. Q is given 1 micro means 10 to the power minus 6. 2a is given 2 millimeter, not a. यहाँ पे मिस्टेक करते तुम लोग, a is equal to 2 लेते. तो
separated by 2m means it is dipole length. 2a is 2m, millimeter is 10 to the power minus 3 meter. Put the values, ये आंसर आ जाएगा, है ना. डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. ठीक है. ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देखते हैं. सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ये प्लस है और ये माइनस है, ए प्लस है और बी माइनस है. ए लेकिन ए is located at point QA is located at point A, which is at 0 0 minus 15, and other one B is at 0 0 plus 15 coordinates. What are the total charge and electric dipole moment? Total charge of course is 0, है ना. टोटल चार्ज जो है 0 होगा. एंड डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कर लेते कि जेड एक्सिस को ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं एंड दिस इज द ओरिजिन. तो माइनस 15 सेंटीमीटर पर प्लस वाला चार्ज है, क्यू ए है, और ये देखो प्लस पर माइनस वाला चार्ज है, 15 सेंटीमीटर पर माइनस है. तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखना है, ठीक है, प्लस वाला लिखना है. और डायरेक्शन देखो, मैंने क्या बोला, माइनस क्यू, ये वाला माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है. तो इधर से एरो ड्रा करो, तो इट इज़ गोइंग अलॉन्ग द नेगेटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन, है ना. उसको माइनस के कैप लिख सकते हैं. एनसीईआरटी बुक में उन्होंने टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस लिखा है, बट नेगेटिव जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर माइनस के कैप होता है ना. तो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म वे रिटर्न. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई कर लो तो ये मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है. नाउ सिमिलर, नाउ इफ आई आस्क यू कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस पर एक कॉर्नर पे माइनस टू क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, और साइड ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एल. फाइंड आउट द व्हाट इज कॉल्ड नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. तो हाउ टू फाइंड आउट दिस टू चार्जेस आर नॉट टुगेदर. क्यू एंड क्यू अगर एक साथ होते यहाँ पर तो हम आराम से निकाल सकते थे, यहाँ ये डायपोल बन जाता है इधर. बट चार्जेस जो है प्लस क्यू वाले सेपरेटेड हैं, ठीक है. तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, क्या करेंगे, हमने एडिटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो इसको माइनस टू क्यू को हम माइनस क्यू बना लेते हैं और ब्रेक कर लेते हैं इसको, ठीक है. लेट्स ब्रेक इट. माइनस क्यू इधर कर लिया, माइनस क्यू इधर कर लिया. तो ये वाला अभी, ये वाला माइनस क्यू इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ये वाला माइनस क्यू इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है. तो दोनों के डायपोल मोमेंट लिख लेंगे, दोनों के डायपोल मोमेंट हम लिख लेंगे. P1 विल बी Q इंटू एल, P2 विल बी Q इंटू एल, है ना. यहाँ भी देखो डिस्टेंस ऐसे. तो फिर कितना आ जाएगा, ऐड कर देंगे क्या दोनों को. P नेट विल बी P1 प्लस P2. नो, दे आर द वेक्टर क्वांटिटी. एक डायपोल मोमेंट इधर है, एक इधर है, एंगल थीटा है ना. तो वेक्टर से ऐड होंगे ये ऐसे. cos 60, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा तुम्हारा Q इंटू एल √3 कूलम मीटर, ठीक है. गॉट इट. तो लाइक दिस यू हैव टू डू इट. व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने दो पॉइंट यूज़ किए. एक हमने पॉइंट यूज़ किया कि भाई एडिटिविटी प्रॉपर्टी से हमने इसको प्रॉपर डायपोल बना लिया, ठीक है. एडिटिविटी प्रॉपर्टी से डायपोल बना लिया और फिर उनकी
डायरेक्शन देखी, क्योंकि 60 डिग्री एंगल पे है और वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उनको हमने व्हाट वी डिड वेक्टर से ऐड किया ना। सिमिलरली दिस क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर टू दैट, है ना। इसमें -2q ओरिजिन पर है और एक चार्ज जो है कोऑर्डिनेट a0 पर है, दूसरा 0a पर है, एक ऊपर है एक एक्स एक्सिस पे, तो ऐसे ही एक डायपोल इधर बनेगा, एक डायपोल इधर बनेगा, है ना। तो q इंटू ए, P2 विल बी q इंटू ए, 90 डिग्री है तो ये वाला टर्म तो तुम्हारा 0 ही हो जाएगा। तो रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो ये जो है QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, QA को बाहर निकाल लो, √2 लिख दो, है ना। लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। नाउ इसके बाद टॉर्क का टॉपिक है, टॉर्क ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो लेट्स सी टॉर्क को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पहले, है ना। सपोज ये कोई डिस्क है या रिंग है ना, उसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमती, तो इसका टॉर्क कितना होता है ना। टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ, तो सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ, तो आर इंटू एफ, और ये वाला भी उसी डायरेक्शन में घुमा रहा है उसको, तो ऐड कर देंगे इसको, तो ये भी आर इंटू एफ, तो 2r इंटू एफ, 2r कितना हो जाएगा डायमीटर, ये 2r को डायमीटर इंटू एफ लिख दिया। तो ऐसे ही केस इसमें डायपोल में होता है। तो d जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, फिर से देखो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इनटू वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, है ना। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस हियर, in this what is called next derivation. Okay, so next derivation is important for CBSE board examination point of view. Torque on dipole in uniform field, है ना। ये यूनिफॉर्म फील्ड है, इसमें हमने एक डायपोल रखा हुआ है, ऐसे -q नीचे है प्लस q ऊपर है, डायपोल लेंथ 2a है इसकी, ये 2a है, तो ये इधर फील्ड जो है पॉजिटिव से आती है, इधर से कहीं से, है ना। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा क्यू ही, यहाँ पे -q है तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा क्यू ही, बिकॉज इधर पॉजिटिव सोर्स है, माइनस इधर आने की कोशिश करेगा, और डायपोल का एंगल जो है फील्ड के साथ θ डिग्री एंगल है ना। तो ये 2a है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी, दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो आएगी 2a sin θ आएगी, देखो बड़ा रहेगा, ये 2a sin θ हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, बिकॉज ये 2a है और ये एंगल θ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, q इंटू ई, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, ठीक है। तो जो हम टॉर्क का फार्मूला लगा देते हैं अभी, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो 2a sin θ इंटू क्यू ई, तो बट q इंटू 2a ऐसे लिख लिया और e sin θ अलग कर लिया। q इंटू 2a क्या होता है, p होता है डायपोल मोमेंट, और ये e है, तो p e sin θ, और टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस e, वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए। एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हमने ये सब, ठीक है। तो यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन एंड देन derive the relation to get the full marks. Always introduce the terms you are using and then derive the relation. तो एंगल देखो यहाँ पर, ये थीटा जो है, डायपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है, देखो डायपोल मोमेंट इज दिस साइड, फील्ड इज दिस साइड, यहाँ पे मैंने अलग से बनाया हुआ देखो,
तो उनके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से लिख दूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किधर होगी बताओ? डायरेक्शन जो है, टॉर्क की डायरेक्शन जो है किधर होगी? डायपोल मोमेंट की तरफ होगी, इधर होगी, या फील्ड की तरफ होगी? इस तरफ होगी या फील्ड की तरफ होगी, या कहीं और होगी? क्रॉस प्रोडक्ट में इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम गिवन बाय राइट हैंड रूल। फर्स्ट वेक्टर्स की तरफ फिंगर्स रखो और टर्न करो दूसरे वेक्टर की तरफ, है ना। राइट हैंड के जो इंडेक्स फिंगर है फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखो, तो यहाँ इस केस में हैंड जो है पी की तरफ, इंडेक्स फिंगर पी की तरफ आएंगे, तो थम जो है पेपर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में एज पर दिस डायग्राम इट इज़ इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द बोर्ड, है ना। यहाँ पर हम राइट हैंड स्क्रू रूल भी लगा सकते हैं। पी ऊपर की तरफ है, ई हॉरिजॉन्टल है, तो स्क्रू को टर्न करो ऐसे पी से एक की तरफ, तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। राइट हैंड कॉर्क स्क्रू बोलते हैं, या कोई कैप भी देख लो। सपोज पेन जो है, वो जो पेन पुरानी वाली आती थी, उसका कैप जो है ऐसे ऐसे घुमाने से, क्लॉकवाइज घुमाने से अंदर जाता था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से बाहर आता है। तो पहला वेक्टर देखना पड़ता है किधर है। पहला वेक्टर जो है इधर है, दूसरा इधर है, तो स्क्रू तुम्हारा ऐसे घूमेगा। कैप जो है, पेन का कैप ऐसे घूमेगा, है ना। ये बॉटल ले लो, है ना, जो बॉटल्स होती है ना, उसके कैप जो होते हैं, स्क्रूज होते हैं उसमें, तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाता क्लॉक, है ना। तो इस केस में ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू जो है या कैप ऑफ द बॉटल विल गेट इनसाइड, तो जो टॉर्क है वो भी इनसाइड होगा। गॉट इट? इन दिस डायग्राम परपेंडिकुलर टू बोथ, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू पी एंड ई बोथ। ठीक है, और अभी हम देखते हैं थीटा जब 90 डिग्री होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क मैक्सिमम होता है विच इज़ इक्वल टू पी। थीटा अगर 30 डिग्री है, अच्छा हाफ ऑफ द मैक्सिमम कब होगा? 45 पर कि 30 पर? 30 पर। 30 साइन 30 इज़ 1/2, है ना, तो पी बाई 2 हो जाएगा। और थीटा जो है 0 या 180 पर टॉर्क 0 होगा। इसको इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। जब टॉर्क 0 होता है, जब फोर्स 0 होता है, तो वी कॉल इट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मूविंग फर्दर, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड? तो आंसर इज 0 बिकॉज एक फोर्स इधर लग रहा है QE और एक इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक प्लस है एक माइनस है, तो 0 हो गया। और इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड it will be non-zero because at one place field will be E1, at other place field will be E2, both will not be cancelling each other, है ना, तो it will not be zero. This question is frequently asked in board examination. Torque is non-zero but force, net force is 0, so it will not go anywhere. यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल विल नॉट ट्रांसलेट, इसका फॉरवर्ड मोशन नहीं होगा इधर उधर, बट अपनी जगह टर्न कर सकता है बिकॉज टॉर्क इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एंगल बनाएं, वेरिएशन बनाएं थीटा वर्सेस टॉर्क वर्सेस थीटा का, तो साइन थीटा का फंक्शन है, देखो, है ना, ये तो साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ से? ओरिजिन से स्टार्ट होता है। थीटा 0 है तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। साइन का फंक्शन ऐसे आता है। थीटा चेंज करेंगे तो इस तरह से, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी पी, नीचे माइनस पी होगी, तो साइन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, डायपोल मोमेंट दिया है, टॉर्क निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस देखनी है, P क्रॉस E, है ना। यहाँ से सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हम लोग, P क्रॉस E रहेगी, है ना, कन्वेंशनली, है ना। नॉट ओनली कन्वेंशनली, ये डे टू डे लाइफ के साथ मैच भी करती है। जैसे तुम फैन का जो है, फैन की स्पीड, फैन के किसी पार्टिकल की, है ना, टिप ऑफ द ब्लेड पर एक पार्टिकल ले लो, उसकी जो स्पीड है V, लीनियर स्पीड,
ओमेगा क्रॉस आर से निकाल सकते हैं। ओमेगा जो है राइट हैंड रूल से देते हैं फिंगर से, और आर जो है सेंटर से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस वेक्टर ड्रॉ करो, तो जिधर ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन आएगा उधर ही उस पार्टिकल का वेलोसिटी का मूवमेंट होगा। तो मैच करती है डे टू डे लाइफ से ये सब डायरेक्शंस, नॉट जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो पी पहले मतलब उसको जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैच करेगा टॉर्क की, जिधर टॉर्क की डायरेक्शन जो है जनरली टॉर्क की डायरेक्शन जो है अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ रोटेशन होती है ना, उसके साथ मैच करेगा। गॉट इट। तो यहाँ पर देखते हैं तो P पहले लिखना है, जानबूझ के P बाद में दिया है, तो P क्रॉस ही P का जो है लिख लिया हमने, आई कैप नहीं था यहाँ पर तो ज़ीरो आई कैप लिख लिया, और इसमें K कैप नहीं है तो ज़ीरो K कैप ऐसे लिख लिया, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। आई जे के फर्स्ट रो जो आई जे के, सेकेंड रो में इनके कोफिशिएंट आ जाते हैं 0 1 1, थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाते हैं 2 2 0, है ना। फिर इसको सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते आए, उसको हाइड कर लेते, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस आता है, फिर सेकेंड एलिमेंट लिखते ऐसे, इसके लिए प्लस लिखते बीच वाला माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे माइनस जे लिखा है, इसको हाइड कर लिया, इसके रो एंड कॉलम को, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2 × 1, माइनस बीच में माइनस आ गया ब्रैकेट के अंदर सबका। फिर जब के लिखेंगे तो के की रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे, फिर फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट का पहले मल्टीप्लाई करना है, जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट बचता है। तो 0 × सॉरी यहाँ पे देखो ये हाइड हुआ, तो 0 × 2 आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस आएगा, फिर रिमेनिंग का 2 × 1, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं रूट के अंदर, -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो √2 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखिए न्यूटन मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर, वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एनसीईआरटी बुक 1.10, डायपोल मोमेंट P is given, एंगल थीटा इज गिवन 30 डिग्री एंड फील्ड इज गिवन, है ना। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 है और 3 टर्म्स दिए हैं। तो निकालना क्या है, टॉर्क निकालना, P भी दिया, E भी दिया, थीटा भी दिया। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट एंड चेक द आंसर इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट को हम एंड ऑन भी पोजिशन बोलते हैं, एंड ऑन। कुछ बुक्स लिखती हैं बट एनसीईआरटी बुक में एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, तो इट इज़ सिमिलर टू द दो चार्जेस हैं। तो जैसे हमने न्यूमेरिकल किया था, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से या वेक्टर लॉ से, एक चार्ज की फील्ड निकाल ली उस पॉइंट पर, दूसरे चार्ज की फील्ड निकाल ली उस पॉइंट पर, फिर उनको वेक्टर सम कर दिया। ठीक है, तो ये हमने डायपोल लिया। यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। ये डायपोल ले लिया हमने, -q इधर +q इधर, और दोनों के बीच में डायपोल लेंथ 2a है, हाफ लेंथ a, इधर से a और इधर से a। पॉइंट P यहाँ पर लिया जो कि डिस्टेंस r दूरी पर है सेंटर ऑफ द डायपोल से, r हमेशा सेंटर ऑफ द डायपोल से होगी, तो इसलिए इस चार्ज की डिस्टेंस में r - a हो जाएगा। यहाँ से जब इसकी फील्ड लिखेंगे तो यही डिस्टेंस चाहिए ना, तो उसके लिए r - a। जब इसकी फील्ड लिखेंगे तो a इसमें ऐड हो जाएगा, तो -q जो चार्ज है r + a दूरी पर रहेगा, तो दोनों की फील्ड लिख देंगे और वेक्टर से उनको अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। देखते हैं अपोजिट में कैसे आएंगी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है, ये पूरा जो अभी मैंने समझाया, डिस्टेंसेस भी समझा दी मैंने। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या है, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P इज गिवन बाई, इसकी फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की रेडियल है, है ना,
तो ई प्लस क्यू, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना डिस्टेंस कितना होगा आर माइनस है उसका स्क्वायर टूवर्ड्स राइट, ठीक है। फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, तो माइनस क्यू है तो फील्ड उसकी तरफ रेडियली टूवर्ड्स इट, इस पॉइंट पर एरो जो है माइनस क्यू की तरफ आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट आएगी फील्ड कितना के, ठीक है, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब हम डायरेक्शन लेंगे, है ना, डायरेक्शन लेंगे तो मॉड में लिखेंगे इसको, है ना, और डिस्टेंस आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो एक वेक्टर राइट में है, एक लेफ्ट में, ये छोटी होगी मैग्नीट्यूड में छोटी होगी बिकॉज इसका चार्ज तो उतना ही है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो दिस विल बी स्मॉल। इसका एरो भी मैंने छोटा बनाया देखो, ठीक है। तो नेट फील्ड इज दिस मच ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू। यहाँ पे के क्यू हमने दोनों के जो है फील्ड लिख दी, के क्यू कॉमन ले लिया, अंदर ये डिस्टेंस बचेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2RA बचेगा ऊपर। इसको ब्रेक कर लिया हमने, 2 को अलग कर लिया, Q इंटू 2A कर लिया, R भी एक है बचा हुआ ऊपर और नीचे। तो ये Q इंटू 2A क्या हो जाएगा, P हो जाएगा डायपोल मोमेंट, है ना, और R बच गया, 2 बच गया। तो ये एक डेरिवेशन हो गया इतना, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। क्यों ऐसा, देखो यहाँ पे देखो, ये फील्ड बड़ी है, ये छोटी है, तो नेट फील्ड इधर ही बचेगी टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इस डायग्राम के हिसाब से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ऐसे एरो आ रहा है, विच इन फैक्ट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट आल्सो, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, टूवर्ड्स माइनस क्यू टू प्लस क्यू और डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट की तरफ है, ठीक है। एंड अगर शॉर्ट डायपोल है तो आर विल बी मच ग्रेटर देन ए, है ना, तो ये वाला टर्म जो यहाँ पर जो है फिर ए छूट जाएगा, तो आर स्क्वायर ही बचेगा, और उसका स्क्वायर भी है तो आर की पावर 4 हो जाएगी, एक आर ऊपर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब बचेगा बस, है ना, नीचे R4 आएगा लेकिन एक आर ऊपर भी है तो आर क्यूब बचेगा, ठीक है। तो ये फाइनल ये आ गया तुम्हारा शॉर्ट डायपोल के लिए 2P बाई आर क्यू, के इंटू 2P बाई आर क्यू, के ये वाला है 4 है ना। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, डायपोल मोमेंट की तरफ डायरेक्शन है उसकी, यहाँ पे एरो लगा दिया तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ डायपोल मोमेंट लिख दिया, ठीक है। और अगर सपोज हमने डायपोल घुमा दिया ऐसा, माइनस क्यू इधर रखा, प्लस क्यू इधर रखा, है ना, और फिर यहाँ पे पॉइंट लेंगे, है ना। पॉइंट देखो इसमें भी इधर भी ले सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट लिया ना तभी भी फील्ड इधर ही आने वाली, एक्सियल फील्ड ई एक्सियल जो है इधर ही आने वाली है, ठीक है। बस ओनली थिंग सिस्टम के अंदर नहीं लेना है, सिस्टम के अंदर देखो अपोजिट आती है। देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट तुम्हें बताऊँ, पहले ऊपर चलते हैं। देखो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डायपोल मोमेंट किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, और फील्ड किधर होती है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होती है। तो अंदर फील्ड इधर है, डायपोल मोमेंट इधर है, बट हमें फील्ड से कुछ लेना देना नहीं, अंदर कभी भी डायपोल की फील्ड अंदर डिस्कस नहीं की जाती है ना। यहाँ भी आ जाओ वापस, है ना। सिस्टम के अंदर हम फील्ड नहीं देखेंगे, वो तुम्हारा उसकी डायरेक्शन कुछ और ही आएगी, पता किस तरफ आएगी। तो सिस्टम के अंदर नहीं, ये बाहर है, सिस्टम के बाहर, है ना। यहाँ भी लिया तभी भी इधर ही आएगी ई एक्सियल, और यहाँ भी इधर ही आ रही, अंदर नहीं लेना है ना, आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अगर हमने डायपोल टर्न कर दिया, माइनस क्यू इधर रखा, प्लस क्यू, डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, एक्सियल फील्ड इधर आ जाएगी, चाहे इधर ले लो पॉइंट तभी भी इधर आएगी, इधर ले लो, है ना। एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही रखा है इनफैक्ट, तो दैट इज़ नॉट कन्वीनियंट, यू डू इट लाइक दैट, जैसे हमने किया है, you will get the full marks every time we are doing like that, and student get the full marks. Last time one of the student got 98 marks, he just did the mistake in graph, therefore he lost 2 marks, otherwise he could have scored full 100 marks in the physics. Arpit Anwani, ठीक है, now he is in the BITS Plani. Okay, so what is the angle between
डायपोल मोमेंट एंड ई एक्सीएल फॉर डायपोल। तो टेल मी थिंक क्या आंसर आएगा। देखो एज पर द फर्स्ट डायग्राम ऊपर वाला, डायपोल मोमेंट भी इधर ही है और एक्सियल पॉइंट पे फील्ड भी उसी तरफ है, तो थीटा विल बी 0। ठीक है, दोनों एक ही तरफ रहते हैं। चाहे डायपोल को टर्न भी कर लो, यहाँ भी देखो जब हमने टर्न कर लिया तो डायपोल मोमेंट इधर है और फील्ड भी इधर है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट डेरिवेशन which is the electric field due to dipole on इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेन जो है बाइसेक्टिंग लाइन से जो जाता है, ट्रांसवर्स प्लेन, मिड पॉइंट से जो ये लाइन जाएगी इक्वेटोरियल प्लेन हो जाती है, इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, इसको कुछ बुक्स ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, बट जनरली एनसीईआरटी बुक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं लिखते ब्रॉड साइड ऑन एंड एंड ऑन पोजीशन। If you are interested, I can write here broad side on, इक्वेटर को बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होगा इसमें, कैसे करेंगे हम लोग। तो ये माइनस क्यू चार्ज है, फिर से डिस्टेंस जो है हाफ डायपोल लेंथ ए हो जाएगी, डिस्टेंस यहीं से लेंगे, ये आर डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा पॉइंट पी का आर से रहेगा, है ना, आई मीन मिड पॉइंट से रहेगा, वो आर रहेगा। यहाँ पे आर मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ इधर, लेट मी राइट दिस साइड, ये आर रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, आर इज दिस मच। तो इस माइनस क्यू की जब फील्ड निकालेंगे, माइनस है तो इधर आएगी, कितनी आएगी यहाँ से देखो, दोनों की इक्वल आएगी, एक साथ लिख देते हैं, डिस्टेंस सेम है। और इसकी जो है पॉजिटिव की रेडियल ये भी आएगी, डिस्टेंस दोनों का सेम है, ये डिस्टेंस इतना आएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आर है ये ए है। ठीक है, हाफ डायपोल लेंथ, तो ये आर डैश दे दो सिंबल इसको, ये आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर, तो दोनों इक्वल आएंगे मैग्नीट्यूड में। तो के क्यू मॉड ले लेंगे अपॉन आर डैश स्क्वायर ये है, तो रूट हट जाएगा उसका, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और एक की इधर और एक की इधर, तो इसमें क्या करते हैं, वेक्टर से हमें वेक्टर लॉ से निकालना है, रूट ऑफ ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर प्लस टू ई1 ई2 कॉस टोटल एंगल, है ना। एक तो वो मेथड है, या फिर कंपोनेंट कर लो, इसका जो है ये थीटा इधर है तो ये दूर वाला कंपोनेंट साइन होगा, इसमें थीटा इधर दिए तो साइन कंपोनेंट कैंसल्स, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट होंगे, साइन कंपोनेंट्स गेट्स कैंसल्ड एंड कॉस कंपोनेंट्स एड्स अप। तो ये वाला एक का कॉस कंपोनेंट इधर, दूसरे का भी इधर, 2e कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो e की वैल्यू पुट कर दी, कॉस थीटा देखो यहाँ से, ये हमने लिखा हुआ पहले से, कॉस थीटा इज ए अपॉन हाइपोटेनियस ये। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा इतना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख दिया, 2a एंड q को p लिख दिया और ये आ गया। डायरेक्शन देखो इधर है, इस तरफ है, नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर है, डायपोल मोमेंट इधर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस q से माइनस q या अपोजिट, सॉरी यहाँ पे एरो नहीं लगाएंगे, एरो तो इधर ही आएगा, डायपोल मोमेंट का एरो इधर आएगा। तो डायरेक्शन जो है प्लस q से माइनस q की तरफ है, आर अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। सी डायरेक्शन इज फ्रॉम प्लस q टू माइनस q और अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। एक्सीएल की अपोजिट है, एक्सीएल जो है डायपोल मोमेंट की तरफ थी, ये अपोजिट है। ठीक है, शॉर्ट डायपोल में आर बहुत बड़ा होगा, ए छोटा होगा, तो ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आर क्यूब बचेगा। तो देखो अगर पीछे वाले से कंपेयर करें हम लोग, तो उसमें 2 था यहाँ पर और ये 2 नहीं है इसमें, तो ये आधी होती है सेम डिस्टेंस के लिए। ठीक है, और डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट की अपोजिट होती है, माइनस पी कैप लगा दिया हमने। ठीक है, तो डायपोल की जो फील्ड है 1/r³ के प्रोपोर्शनल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r⁻³ पॉइंट चार्ज के लिए 1/r² थी, है ना।
और ग्राफ ऑफ कोर्स और फास्ट रेट से ये डिक्रीज़ होगा, ग्राफ ड्रा करें तो और फास्ट रेट से डिक्रीज़ होगा, है ना। डिस्टेंस डबल हुआ, सपोज डिस्टेंस डबल कर दिया यहाँ से यहाँ, तो फील्ड जो है 1/8 टाइम्स रह जाएगी। देखो एकदम से शार्प डिक्लाइन है, बिकॉज r³ है ना, डिस्टेंस डबल करने से 1/8 टाइम। डिस्टेंस आधा किया, सपोज पहले इतना था अभी इतना कर दिया डिस्टेंस, है ना, इतना पहले सपोज इतना था अभी इतना कर दिया, 8 टाइम्स हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी पूछा, देखो इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डायपोल इज बिकम्स हाफ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन फील्ड। तो ऐसे हो जाएगी, नीचे जो है r/2 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिखूँ मैं 1/r³ होता है, तो r/2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये जो है 8/r³ आ जाएगा। तो देयरफॉर 8 टाइम्स, देयरफॉर 8 टाइम्स। डिस्टेंस आधा किया तो 8 टाइम्स, और डबल किया तो 1/8 टाइम्स। दूर जा रहे तो कम हो रहा है, शार्पली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो व्हाट इज द एंगल बिटवीन EXCL एंड इक्वेटोरियल। EXCL जो है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है इधर, और इक्वेटोरियल इधर होता है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके 180 डिग्री और पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ EXCL टू द E इक्वेटोरियल फॉर सेम डायपोल एंड फॉर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो वो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें 2 नहीं आता है इक्वेटोरियल में, और पहले वाले में 2 था, 2:1। सेम डिस्टेंस के लिए एक्सियल पॉइंट की फील्ड स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पॉइंट। डेरिवेशन किया हमने, है ना, वी कैन नॉट आर्ग्यू कि हाउ फार्मूले में हमें दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट डिस्टेंस और ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट इज -16 I cap, है ना, और न्यूटन पर कूलम फील्ड की यूनिट। फाइंड फील्ड ड्यू टू डायपोल on axial point on equatorial point at half of the on equatorial point at half distance from mid point। शॉर्ट डायपोल लेना है ना। तो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं यहीं पर ही। थिंक अबाउट दैट, जस्ट ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट, देन आई एम सॉल्विंग इट। देखो डायपोल को हमने ऐसे टर्न कर लिया, डायग्राम नहीं दिया था बट यू जस्ट मेक द डायग्राम टू फॉर क्लियरिटी। तो यहाँ पे देखो फील्ड इधर दी हुई है -16 I cap। तो सेम डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस ये है एक्सियल पॉइंट पर इधर हो जाएगी 16 I cap हो जाएगी। अगर ये -16 I cap है तो मिड पॉइंट पर, नहीं सॉरी आधी होती है ना, तो ये 8 हो जाएगी। ये अगर -16 I cap है तो सेम डिस्टेंस पर 8 वो भी हो जाएगी, कन्वर्ट भी हो जाएगी, आई मीन डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, प्लस I cap हो जाएगी। और हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे उसकी 8 टाइम्स, तो 64 I cap। गॉट इट। क्या किया मैंने, सेम डिस्टेंस की पहले निकाल ली, आधी हो जाएगी 8 I cap एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, फील्ड एट सेम डिस्टेंस ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट will be 8 और I cap। ठीक है, आधी भी हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, इसमें माइनस है देखो। देयरफॉर
field at half distance will be 8 times of 8 I cap, 64 I cap will be Newton per coulomb. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट, लॉजिक लगाना है, नहीं तो मिस्टेक हो सकती. नाउ let's see how much time is remaining. Okay, time still we have the time. Now potential energy of dipole in uniform field, this is also important topic है ना, but it is given in the next chapter potential energy का. तो but we are doing all the topics, all the 5 topics of dipole together. Similar topics are there in magnetism also. ठीक है, तो यहाँ पे फिर टॉपिक है, पहले डायपोल मोमेंट था, फिर टॉर्क था, फिर 2 फील्ड हो गई, और ये 5th एंड लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड. जैसा कि हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, किसी मास को ग्राउंड से उठा के ऊपर रख दो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अपना वर्क डन, है ना. या स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करो या इलोंगेट करो तो अपना जो वर्क डन होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में हाफ kx² में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे ही इसमें भी अगर हम डायपोल को टर्न करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में टर्न करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अलाइनमेंट करने की कोशिश करती, या फिर फील्ड की डायरेक्शन में भी टर्न कर सकते हैं. वाट एवर द वे कंडीशंस आर गिवन वी हैव टू डू इट, है ना. तो जो हम वर्क करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वी आर द एक्सटर्नल सोर्स, वर्क डन बाय यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द लॉजिक, है ना. तो लेट्स सी, एंड फिर हम उसको वर्क डन जो है निकाल लेंगे. लेट अस कंप्लीट दिस पॉइंट फर्स्ट. तो when work is done on dipole to turn it in the field, then this work is stored in the form of potential energy which is given by U is equal to minus PE cos theta, या डॉट प्रोडक्ट में माइनस P डॉट T, एंड इसका यूनिट जूल होगा, स्केलर क्वांटिटी या जूल होगा. ठीक है, तो जूल और स्केलर. ठीक है, ओके, राइट. तो लेट्स सी हाउ टू डिराइव दिस. प्रूफ देखते हैं. वर्क डन, अच्छा टर्न कर रहे हैं तो टर्न में क्या होता है, कौन सा वर्क डन होता है, आई मीन टर्निंग में रोटेशनल का वर्क डन. जैसे ट्रांसलेशन मोशन में वर्क डन इज एफ डॉट डी एस, और उसमें टाउ डी थीटा होता है टर्निंग में, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़. और टाउ हमने फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड उसमें टॉपिक में पढ़ लिया था. टॉर्क डायपोल के ऊपर कितना होता है, पी साइन थीटा. तो वो लॉजिक लगाते हैं हम लोग. वर्क डन टू टर्न द डायपोल बाय थीटा इज टाउ डी थीटा, है ना. तो टाउ की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, पी साइन थीटा डी थीटा. इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक टर्न करना है, θ1 to θ2 टर्न करना है. साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस को बाहर निकाल के अपर लिमिट पहले, फिर लोअर लिमिट लगा दी. θ2 पहले आएगा, θ1 बाद में आएगा. ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, है ना. यहाँ पे पी छूट गया है, पी लिख दो. ओके, तो इसमें देखो नाउ कन्वेंशन, विल सी व्हाट इज द कन्वेंशन हियर. यहाँ तक ओके है. तो कन्वेंशन जो है, ओके पहले तो हम ये वर्क पावर एनर्जी का जो लॉजिक था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, है ना. तो ये जो वर्क डन है उसको U2 माइनस U1 लिख दिया. ठीक है, तो ये अभी रिलेशन बन गया इक्वेशन 1. अभी यहाँ पे कन्वेंशन लगाना है. कन्वेंशनली एट ओरिएंटेशन 90 डिग्री, ऐसे जब डायपोल ऐसा होता है फील्ड के साथ, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज कंसीडर्ड टू बी ज़ीरो. ये कन्वेंशन है ना. जैसे हमने पोटेंशियल के लिए, है ना, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है ना, और पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी इनफाइनाइट पे ज़ीरो होती है, बट ये डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में,
तो कन्वेंशनली एट ओरिएंटेशन 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो, देयरफॉर एट थीटा 1 दैट इज पाई बाय 2 u1 इज़ जीरो एंड अनदर एंगल थीटा 2 को हम थीटा ले लेंगे, एक ही एंगल बचेगा इसलिए, और सेकंड उसकी जो u2 होगी वो u लिख देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना। तो u2 था, तो u2 को हमने u लिखा है, u1 को 0 लिया है, यहाँ पे माइनस पी एज इट इज़। यहाँ पे क्या था, ऊपर देखो cos थीटा 2 है, थीटा 2 जो है थीटा है और थीटा 190 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली वी विल बी लेफ्ट विद दिस डेरिवेशन। एनर्जी है इसलिए जूल, डोंट सी दिस पी एंड ई मत देखो, सीधा एनर्जी देखो, उसकी यूनिट जूल लिखो। डॉट प्रोडक्ट में माइनस पी डॉट ई, डायरेक्शन नो डायरेक्शन, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो नोट लिखते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एट थीटा इज इक्वल टू 0 टॉर्क विल बी 0 बिकॉज पीछे टॉर्क के फंक्शन में साइन है, बट पोटेंशियल के फंक्शन में कॉस है, तो कॉस है यहाँ पे देखो, तो कॉस 0 1 होता है, तो u इज इक्वल टू माइनस पी, है ना, तो माइनस लगा हुआ है आगे, इसलिए मिनिमम है। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम थी बट आगे माइनस लगा है, इसलिए मिनिमम हो गया, ठीक है। एट दिस एंगल डायपोल इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 0 को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज टॉर्क 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना। जैसे हम लोग भी जब बिस्तर पे सो जाते हैं तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है एंड कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए नॉर्मल जो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे हर सिस्टम आना चाहता है। डायपोल को भी छोड़ दो तो टर्न होके ऐसे अलाइन हो जाएगा, है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। हम लोग जब वॉक करते हैं उस समय अपनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती, हाइट पे गए तो और ज़्यादा हो जाती, और जब लाई डाउन कर जाते हैं तो अपना सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ग्राउंड के पास आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, कंफर्टेबल फील होता है। ऐसे बाकी सिस्टम भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखना चाहते हैं एंड कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, ठीक है। डायपोल भी अलाइन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो, ठीक है। माइनस इधर आ जाएगा, प्लस डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, है ना। माइनस कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, क्योंकि फील्ड पॉजिटिव से आती है तो माइनस इधर ही आना चाहेगा, कैसे भी छोड़ो इस पोजीशन में अलाइन करना चाहेगा वो, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री टाउ विल बी 0, साइन 180 इज 0 एंड कॉस 180 इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। डायपोल एट दिस पोजीशन इज ऑन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो है, टॉर्क तो 0 है, बट पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसकी, तो इसलिए अनस्टेबिलिटी रहती है ना। तो देखो इसको बड़ा डायग्राम कर लेते हैं, ऐसा है वो, रुका हुआ तो है लेकिन ये जो है इधर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इक्विलिब्रियम में उसकी स्टेबल नहीं है। थोड़ा सा टर्न कर दो ऐसा तो पूरा टर्न हो जाता है, फिर ऐसे घूम जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, है ना, तो इसीलिए अनस्टेबल है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, उसके ऊपर एक तुमने छोटी सी मेटल बॉल, छोटी सी बॉल रखी, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, दूर चला जाएगा, ऐसे ये भी ऐसे पूरा टर्न होके इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा टर्न होके इधर आ जाएगा, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसको ऐसे शिफ्ट कर दो तो वापस अपनी जगह आ जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ी देर ऑसिलेट करेगा फिर अपनी जगह आ जाएगा, ऐसे जैसे ये इसको शिफ्ट करो तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा फिर अपनी जगह यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये अंदर वाली जो छोटे बॉल की जो है पोजीशन एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, रिटर्निंग पोजीशन है उसकी अपनी जगह आने की। ऊपर वाला जो है उसकी वापस आने की, इधर शिफ्ट कर तो ग्राउंड में आ जाएगा, ऊपर नहीं जाने, वापस आने की टेंडेंसी नहीं है। ऐसे इक्विलिब्रियम को, रुके हुए तो हैं दोनों, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऊपर वाली पोजीशन, नीचे वाली इक्विलिब्रियम यहाँ ले के छोड़ दो तो वापस आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखो, इफ डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल इज P and it is in uniform field E, find potential energy at theta 60 90 and at stable equilibrium unstable equilibrium। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख लिया एंड आल्सो फाइंड द टॉर्क। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख लिया, माइनस पी ई कॉस थीटा, तो 60 डिग्री पे कॉस
1/2 होता है, माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो Pe/2 90 पे 0 होता है, कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कॉस थीटा 1 होता है, मतलब थीटा 0 होता है, तो माइनस पी ही आएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कॉस 180 दैट्स -1, तो प्लस हो जाएगा, पी आ जाएगा। टॉर्क में देखते हैं, पी साइन थीटा फार्मूला होता है, साइन 60 इज √3/2 है ना, और साइन 90 इज़ 1, और बाकी दोनों जो है इक्विलिब्रियम है, मतलब टॉर्क 0 ही आना चाहिए उस पर। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, ठीक है। दैट्स व्हाट इज द डायरेक्ट क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ग्राफ एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात हो रही है? डायपोल की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सिस्टम, है ना। सिस्टम चेंज हो सकते हैं आगे चल के, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर डायपोल है और उसकी यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में चेंज हो सकती है, वो अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो इसमें कॉस थीटा का फंक्शन, यू में कॉस थीटा आता है लेकिन निगेटिव है, देखो ये तो निगेटिव है, तो नीचे से स्टार्ट होगा, होता है। अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे ऊपर से स्टार्ट होता है, ऐसे आता है ग्राफ, बट माइनस है आगे लगा हुआ, तो नीचे मैक्सिमम से स्टार्ट होकर ऐसे आगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आते हैं कभी कभी कि भाई वर्क डन निकालो टू टर्न द डायपोल, तो वर्क डन का फार्मूला जनरली याद नहीं रहता है। कॉस थीटा 1 पहले आया कि कॉस थीटा 2 पहले है, बाहर माइनस कि बाहर प्लस। तो बेटर यू डू वन थिंग, वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा हुआ है। ऊपर से डेरिवेशन भी इसी लॉजिक सीख गया था। चेंज में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो तुम्हें याद रखना ही है, माइनस पी कॉस थीटा। तो सेकंड पोजीशन के लिए बस इतना ही याद कर लो, बाकी वैल्यू पुट कर सकते हो। ये डेरिवेशन ये याद नहीं रहता जनरली। तो U2 में थीटा 2 आएगा, U1 में थीटा 1 आएगा। सिंप्लीफाई करके ये आता है, बट जनरली वी फॉरगेट। तो यहाँ से स्टार्ट करो और पोटेंशियल एनर्जी का ही फार्मूला याद रखो, माइनस पी कॉस थीटा, दैट्स ऑल। ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, इसीलिए थीटा 1 वाला टर्म हमने आगे लिखा हुआ है, प्लस हो चुका था ये अलग, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैग्नेटिज्म में भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो एक पॉइंट और सीखते हैं जो हमें बहुत काम आने वाला है। ये जो वर्क डन है जो हमने ऊपर निकाला है ना, पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन से निकल, तो एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन है। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। मोस्टली वही क्वेश्चन भी होता है, बट कभी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया तो इज निगेटिव ऑफ दिस, जो भी निकालो उसको नेगेटिव कर दो। क्यों? इसका लॉजिक क्या है? अगेन वर्क पावर एनर्जी की एक वेल नोन थ्योरम है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक, ओके, वर्क डन कौन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल सोर्स ने किया, फील्ड भी साइमल्टेनियसली करती है वहाँ पर, है ना। फील्ड भी साइमल्टेनियस वर्क करती रहती है। ग्रेविटेशन में भी ऐसा होता है, तुम जितना वर्क कर रहे ग्रेविटी का भी काम चलता रहता है वहाँ पर, है ना। तो राइट साइड में लेकिन काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 है। इनिशियल सपोज ऐसे था, थीटा 1 पे रुका हुआ था डायपोल, ओके। एंड फाइनली हमने उसको टर्न कर दिया, तो फिर भी रुका हुआ है, तो पोटेंशियल चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 0, देयरफॉर राइट साइड में तो 0 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या है? ये दोनों है, तो इधर भेज दो उसको। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। एक दूसरे के निगेटिव होंगे तभी तो ऐड होने से 0 आएगा, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फाइंड द वर्क डन टू टर्न द डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180, है ना। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस एंड माइनस पी कॉस थीटा 1, तो ये फार्मूला बन गया। और थीटा 1 0 है और थीटा 2 180 है, तो कॉस 0 इज़ 1 एंड कॉस 180 इज़ -1, तो 2p is the answer. So that's all today. We will continue tomorrow
we'll see in that area vector